مولانا صاحب آپ صحابہ صحابہ کرتے ہو، ہر عنوان پہ صحابہ کی بات کرتے ہو. میں نے انہیں جواب میں کہا صرف میں صحابہ صحابہ نہیں کرتا، ہر نمازی صحابہ صحابہ کرتا ہے، ہر مجاہد صحابہ صحابہ کرتا ہے، ہر انسان صحابہ صحابہ کرتا ہے، ہر ذی شعور فرد صحابہ صحابہ کرتا ہے. تو نماز میں کھڑے ہو کر صحابہ کا تذکرہ کر کے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کہنے والا کہتا ہے یہ سیدھا راستہ صحابہ کا راستہ ہے. آگے آئیے سورہ فاتحہ سے آگے آئیے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے. سب سے پہلے متقین کون سے ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو لیا. تو جواب آتا صحابہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لائے جو کچھ آپ سے پہلے اترا، جو کچھ آپ پر اترا ان پر ایمان لائے. پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایمان لانے والے پہلے کون ہیں؟ تو جواب آتا ہے صحابہ کرام ہیں. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. وہ کون تھے آخرت پر یقین رکھنے والے؟ پتہ چلتا ہے وہ صحابہ کرام ہیں. پہلے سپارے سے، پہلی سورت سے، سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ سے چلتے چلے جائیے، وقت نہیں میں قرآن پڑھوں، ہر سپارے کی ایک آیات پیش کروں، 2 پیش کروں، 4 پیش کروں، 5 پیش کروں، 10 50 پیش کروں، وقت مختصر ہے. آگے جانا چاہتا ہوں، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. آخری پارے میں آ جائیے. رب العالمین پھر ان کا ذکر کرتے ہیں جب فتح آتی ہے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ نے انہیں فوج کہا، ان کے آنے کو خوشخبری کہا، ان کے ایمان قبول کرنے کو بشارت کہا، ان کے مجموعوں کا ذکر کیا، ان کا انفرادی ذکر کیا، ان کا اجتماعی ذکر کیا. کئی مومنون کہا، کئی مفلحون کہا، کئی متقون کہا، کئی راشدون کہا، کئی قائمون کہا، کئی حافظون کہا، کئی اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کئی نے لہم مغفرت کہا، کئی لہم رزق کریم کہا. اٹھائیے قرآن، پڑھیے قرآن. میں اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں جس تاریخ نے صحابہ پر تبرہ کیا ہو. میں اس قرآن کی بات کرتا ہوں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. بھائی شان صحابہ تمہیں ڈھونڈنی ہے تو قرآن سے ملے گی. کس سے ملے گی بھائی؟ اونچی بولو، کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. اور جن کے تذکرے قرآن میں ہو ان کا تذکرہ کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں بزرگ ہے، اس بزرگ کا تذکرہ حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں کیا، فلاں کا تذکرہ حضرت مدنی نے اپنی کتاب میں کیا، فلاں کا تذکرہ حضرت شیخ الہند نے اپنی کتاب میں کیا. میں نے کہا اس کے اوصاف کیا ہے؟ کہ یہ اوصاف کم ہے. مدنی جس کا ذکر اپنی کتاب میں کرے، حضرت تھانوی جس کا ذکر اپنی کتاب میں کرے، حضرت گنگوئی جس کا ذکر اپنی کتاب میں کرے. اور دنیا دار لوگ کہتے ہیں صدر نے میرا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، وزیر اعظم نے میرا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، سائنسدان نے میرا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا. میں نے کہا تمہاری اہمیت ہے. پھر پوچھتا ہوں اس کتاب میں تذکرہ کتنی مرتبہ ہے؟ وہ کہتا ہے 1 مرتبہ ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں سطر پر ہے. 1 مرتبہ ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں سطر پر ہے، یہ تذکرہ ہے. ہاں میں نے کہا 1 مرتبہ تیرا تذکرہ کسی کتاب کے ایک ورق میں آئے تو قابل رشک ہے. میرے صحابہ کا ذکر قرآن کے ہر آیت میں آئے، قرآن کی ہر سورت میں آئے، قرآن کے ہر مفہوم میں آئے، قرآن کے ترجمے میں آئے، قرآن کی تفسیر میں آئے، قرآن کی تشہیر میں آئے، قرآن کے شان نزول میں آئے، قرآن کے شان ورود میں آئے. 1 مرتبہ تذکرہ ہو جائے میں تیری تعریف کر لوں. جس کے 1226 مرتبہ ذکر قرآن کی آیاتوں میں موجود ہو اس کی عظمت کی بات نہ کروں. کیا پوچھتے ہو مجھ سے شان صحابہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اگر صحابہ کی شان تو پڑھو اللہ کا قرآن. پوچھنا چاہتے ہو اگر صحابہ کی شان تو پڑھو اللہ کا قرآن.
तुम्हें फिर मालूम होगी। सहाबा की शान ये कहीं और से मालूम नहीं होगी। और अगली बात, सहाबा की शान के लिए काफी नहीं है कि हुजूर के जमाने में आप पैदा हुए, ये सहाबा की शान है। हुजूर के साथ आप गए, ये सहाबा की शान है। हुजूर ने आपको बैत किया, ये सहाबा की शान है। हुजूर के साथ आपने हिजरत की, ये सहाबा की शान है। हुजूर ने अपनी बेटियां आपको दी, ये सहाबा की शान है। उनकी बेटियां हुजूर की अज़वाजे मुतहहरात बनी, ये सहाबा की शान है। उन्होंने कलमा नबी के साथ पढ़कर नबी के साथ चले, ये सहाबा की शान है। पैगंबर के दस्तो बाजू बन गए, ये नबी की शान है। हुजूर ने उनकी तारीफ की, ये नबी की शान है। अल्लाह के रसूल ने उनकी तारीफ की, ये सहाबा की शान है। अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ बैठे, ये उनकी शान है। उनकी बात तौरात में, ये उनकी शान है। उनकी तारीफ ज़बूर में, ये उनकी शान है। उनकी बात इंजील में, ये उनकी शान है। उनकी बात औरातों में, ये उनकी शान है। वो चीन तक पहुंचे, ये उनकी शान है। वो बदर में फातेह हुए, ये उनकी शान है। वो मैदानों में फातेह बने, ये उनकी शान है। उनने कम होकर ज्यादा का मुकाबला किया, ये उनकी शान है। वो दुनिया पर छाते चले गए, ये उनकी शान है। वो सारे आलम पर फैलते चले गए, ये उनकी शान है। नबी का दीन उन्होंने पहुंचाया, ये उनकी शान है। हुकूमत उन्होंने की, ये उनकी शान है। मदीना उन्होंने कायम किया, ये उनकी शान है। मस्जिद नबी उन्होंने बनाई, ये उनकी शान है। बैतुल्ला उन्होंने आबाद किया, ये उनकी शान है। और बैतुल्ला की छत पे अजानें उन्होंने दी, ये उनकी शान है। कलमा हक उन्होंने कहा, ये उनकी शान है। अजानें उन्होंने दी, ये उनकी शान है। आलमी दुनिया तक वो पहुंचे, ये उनकी शान है। अरब से अजम तक वो आए, वो उनकी शान है। और जनाब समंदर में घोड़े उन्होंने दौड़ाए, ये उनकी शान है। पहाड़ों और बुलंदियों पे वो पहुंचे, ये उनकी शान है। कुरान को पूरी दुनिया में फैलाया, ये उनकी शान है। खुद अपने हाथों से लिखा, ये उनकी शान है। खुद लिखकर आगे फैलाया, ये उनकी शान है। वो कुरान के पहले हाफिज बने, उनकी शान है। वो कुरान के पहले आलिम बने, उनकी शान है। उन्होंने बराह रास्त नबूवत को देखा, ये उनकी शान है। नबूवत ने उनको देखा, ये उनकी शान है। वो नबी को वो नबियों के सरदार के पीछे खड़े रहे, उनकी शान है। वो नबूवत के साथ वार हुए, ये उनकी शान है। उनने जाने दी, ये उनकी शान है। वो डटे रहे, उनकी शान है। वो खड़े रहे, उनकी शान है। कुरान के मुहाफिज बने, उनके शान है। नबी के साथी बने, उनके शान है। ताबेदार बने, उनकी शान है। फरमाबरदार बने, उनकी शान है। फिर इज्जतदार बने, उनकी शान है। फिर कैसर और किसरा, रूम और फारस के पर खच्चे उड़ाए, उनकी शान है। पहाड़ों की चोटियों पे आसान को पहुंचाया, उनकी शान है। बेरी बेड़ा बनाया, उनकी शान है। पूरे आलम में फैलते चले गए, उनकी शान है। भाई मिस्र तक वो आए, शाम तक वो आए, लबनान तक वो आए, उर्दन तक वो आए। अगर पूछना चाहते हो तो कंधार तक वो आए, काबुल तक वो आए, पेशावर तक वो आए, सक्खर तक वो आए। दुनिया के कोने कोने में उनकी कब्रें फैल गई। आज भी जाओ उनकी कब्रें देखो तो पता चलता है उनकी शान है। और बात के इख्तिताम की तरफ जाते हुए बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस पे भी यकीन नहीं आता तो मस्जिदों की अजानें सुनो, उनकी शान है। अल्लाह का कुरान हर गली में सुनो, उनकी शान है। घरों में कुरान का मौजूद होना, उनकी शान है। मौलवियों का होना, आलिमों का होना, मुत्तकियों का होना, कारियों का होना, हाफिजों का होना मेरे सहाबा की शान है। इसलिए कि उनकी वजह से इन्हें सब कुछ मिला है। तो आओ मिलकर हम नारा लगाएंगे, शान सहाबा, शान सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, अखलाक सहाबा, सोहबत सहाबा, जुर्रत सहाबा, सदाकत सहाबा, अदालत सहाबा, वफाए सहाबा, हयाए सहाबा, इज्जत सहाबा, रिफत सहाबा, मकाम सहाबा, बुलंदी सहाबा, रिफत सहाबा, शान सहाबा, अजमत सहाबा, मदे सहाबा, दिफाए सहाबा। अब सब मिलकर दुनिया को बताओगे हम सहाबा के तराने दुनिया में गाएंगे। अंजुमन शान सहाबा हो या अंजुमन सिपाही सहाबा हो, गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया सदा लगाएंगे। हाथ खड़ा करो, मुक्का बनाओ, शबाई बोलो, सहाबा सहाबा, खड़े में भी बोलो, बैठे में भी बोलो, सहाबा 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 सहाबा। गूंज पैदा करो, आवाज पैदा करो, सहाबा।
जज़ाक अल्लाह। मैं आपसे कहता हूं, अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, अपने गलियों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, बाजारों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, अपने घरों में सहाबा का तस्करा करो, अपने लोगों में सहाबा का तस्करा करो, बच्चों के सहाबा के किस्से सुनाओ, कुरान की तफसीर में सहाबा को लाकर दुनिया को बताओ, एक धूम मचा दो और दुनिया को कह दो हम मदे सहाबा की एक धूम मचा देंगे। ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर अंजुमन शान सहाबा के जिम्मेदारों को, इन्होंने मेरे लिए सबसनामा पेश किया, मैं इस काबिल नहीं था, न मेरी इतनी कोई अहमियत और औकात है, इन्होंने मुझे इज्जत दी, इन्होंने मेरे लिए जुमले खैर के कहे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने भाई मुफ्ती तलहा साहब, मौलाना मामून अब्दुल्ला साहब जो हमारे मुसफ़र भी हैं और हमारे यहाँ आने का ज़रिया भी है, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। भाई अली हसन उसामा साहब, इन तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला ज़े खैर दे। हम सबको मिलकर पूरी दुनिया में सहाबा की इज्जत अज़मत के लिए एक होकर मुत्तहिद होकर काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ शान सहाबा के हवाले से मैं आपसे कहता हूँ, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हाजिर होंगे, जो खिदमत आप कहेंगे हम उस पर पूरा उतरेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी निस्बत कायम थी, है और रहेगी। जज़ाकुमुल्लाह। आइंदा भी हमारी इस मजलिस इंशाअल्लाह ताला 5 और 6 नवंबर कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे तशरीफ़ आवारी फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमें बहुत सी मोहताजों दुआगो हैं उनके, हम एक हैं इसलिए कि इनका कलमा एक है, इनकी नमाज एक है, इनका रोज़ा एक है, इनका अकीदा एक है, इनका नजरिया एक है। हम भाई हैं इसलिए कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आपके दुख के साथ हमारा दिल धड़कता है और हमारे दुख के साथ आपका दिल धड़कता है। आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में और हमारी मोहब्बत आपके दिलों में है। आपकी मोहब्बत, हमारा रिश्ता कायम था, कायम है और कायम रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे इस कलमे और दीन के रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिश्ता दायमी है और हमेशा का है, और इस रिश्ते की बुनियादें हैं और वो बुनियादें कमजोर बुनियादें नहीं हैं, वो बुनियादें मजबूत बुनियादें हैं। और वो बुनियादें ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, वो बुनियाद है जिस बुनियाद पर इस कायनात में पूरी दुनिया में दीन और इस्लाम फैला। और उस ला इलाहा इल्लल्लाह को पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम हजरत सहाबाए किराम है। जब हम कहते हैं हमारा और आपका एक रिश्ता है और हम उस रिश्ते को तलाश करते और ला इलाहा इल्लल्लाह को बुनियाद पकड़ते, फिर हम सोचते और सवाल करते और गौर करते कि बांग्लादेश की सरजमीन का चाटगाम के इलाके पर आज हजारी में और जनाब फतेहाबाद में ये कलमा कहाँ से आया और ये कलमा कहाँ पहुँचा, जो मेरी और आपकी भाई भाई होने की बुनियाद है, मेरे और आपकी जनाब उखुवत की बुनियाद है, मेरे और आपकी मोहब्बत की बुनियाद है। ये कहाँ से आया और किस जगह से आया? तो हमें बताया जाता है ये कलमा मक्कतुल मुकर्रमा से आया। इस कलमे के लाने वाले जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, जिन्होंने ये कलमा कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलमे को सुनने के बाद सबसे पहले जिन लोगों ने इस कलमे को लिया और लेने के बाद इस कलमे पर अमल किया, फिर इस कलमे को सजाया, फिर इस कलमे को उठाया, फिर इस कलमे को पढ़ाया, फिर इस कलमे से वफा को निभाया, फिर इस कलमे को लेकर दुनिया में फैले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़मत की कसम है, अगर वो लोग वहाँ मक्का मुकर्रमा से ये कलमा लेकर दुनिया में न निकलते तो आज बांग्लादेश की सरजमीन हो या हिंदुस्तान की सरजमीन हो या पाकिस्तान की सरजमीन हो, चाइना तक की सरहदें हो या पहाड़ हो या दरिया हो या समंदर हो, दुनिया का कोना कोना हो, आज ये कलमा कहीं भी न पहुंचता। मैं और आप भाई भाई कभी भी ना बन सकते। हम सूरज के पुजारी होते, हम सितारों के पुजारी होते, हम आग के पुजारी होते, हम मूर्तियों को पूजने वाले होते। आज जो हम अपने सीने पर हाथ फख्र से रख कर कहते हैं आप मेरे भाई हो, मैं कहता हूं मैं आपका भाई हूं। लोग पूछते हैं भाई भाई होने की वजह क्या है? हम कहते हैं वजह कलमा है, जिसकी
بنیاد پہ ہم بھائی بنے ہیں، وجہ قرآن ہے، وجہ دین ہے، وجہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے، وجہ حضور علیہ السلام کا لائے ہوئے احکامات ہے۔ تو سوال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم تک کس نے پہنچائی؟ تو جواب آتا ہے اس رشتے کی بنیاد، اس رشتے کی وجہ، اس رشتے کے پھیلانے کا ذریعہ ایک ہی طبقہ بنا ہے، اور اسی طبقے کو دنیا میں صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے انجمن شان صحابہ نام رکھا، مجھے یاد آ گیا پاکستان کی ایک دھرتی ہے، اس کا نام جنگ ہے۔ جنگ کی اس دھرتی میں ایک مرد قلندر پیدا ہوا تھا، اس کا نام حق نواز تھا۔ حق نواز نے بھی ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی جو آپ کے نام سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ آپ نے کہا انجمن شان صحابہ، انہوں نے کہا انجمن سپاہ صحابہ، اور آپ کو بتانے لگا ہوں انہوں نے جب انجمن سپاہ صحابہ بنائی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے زمانے میں ایک انقلاب آیا تھا، اور اس انقلاب نے کہا تھا کہ یہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے اور یہ انقلاب اصلی انقلاب ہے۔ یہ کہہ کر جب وہ انقلاب نمودار ہوا، اس کے نمودار ہونے کے بعد لٹریچر سامنے آیا، کتابیں سامنے آئی، گفتگو سامنے آئی۔ اس لٹریچر کے اندر، ان کتابوں کے اندر، اس مواد کے اندر اسلامی انقلاب کے نعرہ لگانے والوں نے صحابہ کرام کی توہین کی، انہیں گالیاں دی، ان کی تنقید کی، یہاں تک کہ ان کی تکفیر کی۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو گالی دی گئی، حضرت عمر کو گالی دی گئی، حضرت عثمان کو گالی دی گئی، حضرت طلحہ کو گالی دی گئی، حضرت زبیر کو گالی دی گئی۔ میری اور آپ کی مائیں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جنہیں قرآن نے کہا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ میری اپنی ماں کے ماں ہونے میں، آپ کی ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، مگر عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ منزہ مبرہ عتیقہ ادیبہ خطیبہ عائشہ صدیقہ کے ماں ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے ماں ہونے کی بات اور ازواج مطہرات کی ماں ہونے کی بات قرآن نے کی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس ماں کو گالی دی گئی، اسے نعوذ باللہ الزام لگایا گیا۔ کتابیں آئی، کتابیں چھپی، اردو زبان میں چھپی، پاکستان میں چھپی، ہندوستان میں ہندی زبان میں سمجھی، مختلف ملکوں کے اندر مختلف زبانوں میں وہ کتابیں چھپی، اس میں گالی دی گئی تھی۔ حق نواز نے انجمن سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھ کے یہ عزم کیا اس گالی کو روکنا ہے، اس کفر کو روکنا ہے، اس ظلم کو روکنا ہے، اس شیطانیت کو روکنا ہے۔ اس کے لیے میدان میں آئے، انہوں نے اسٹیج سجایا، اور اسٹیج سجانے کے بعد عظمت صحابہ کے عنوان سے، کردار صحابہ کے عنوان سے، گفتار صحابہ کے عنوان سے، اخلاق صحابہ کے عنوان سے انہوں نے کام شروع کیا۔ وہ گلی 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 گھومتے چلے گئے، لوگوں کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا، مگر وہ طاقت بڑی مضبوط تھی، ان کی لابی بڑی مضبوط تھی، رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، ظلم آ گیا، جبر آ گیا، تشدد آ گیا، راستہ روکا گیا۔ حق نواز کو جیلوں میں جانا پڑا، الٹا لٹکایا گیا، ہتھکڑی پہنائی گئی، بیڑی پہنائی گئی، حق نواز کو الٹا لٹکا کر مارا گیا، ناخن نکالے گئے، سب ظلم و ستم ہوتا رہا، مگر صحابہ کے چاہنے والے نے اور صحابہ کے نام لینے والے نے صحابہ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، ہر ظلم سہ لیا صحابہ کی طرح جنہوں نے نبی کی عزت کے لیے ظلم سہا تھا، ایسا ہی ظلم حق نواز نے صحابہ کے لیے برداشت کیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا، بات یہاں تک پہنچی کہ ہماری جماعت کے قائد علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے بنگلہ دیش کے دورے پر آئے ہوئے تھے، یہی موجود تھے، اور ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے کہ وہاں سے خبر آئی کہ حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ اپنا دورہ مختصر کر کے
वापस गए, क्यों शहीद किया, क्यों गोलियों का निशाना बनाया। अंजुमन शान सहाबा बनाने वालों, अंजुमन सिपाही साहबा ने बुनियाद रखने के बाद खून दिया। और आपको ये सुनकर हैरत होगी, खून किसी और ने नहीं दिया, खून सबसे पहले बानी ने दिया, सबसे पहले क़ियादत ने दिया, अपने आप को पेश किया और पेश करके खून दिया और शहीद हो गए। मैं अगर शुहदा की तादाद गिनना चाहूं और उनके नाम लेना चाहूं, रात गुजर जाएगी, उनके नाम रात भर में खत्म नहीं होंगे। फिर एक गया और दूसरा गया और तीसरा गया और चौथा गया। हक नवाज भी शहीद हो गया, ज़ियाउर रहमान भी शहीद हो गया, ईसारुल कासमी भी शहीद हो गया, आजम तारिक भी शहीद हो गया, अली शेर हैदरी भी शहीद हो गया, मसूद रहमान उस्मानी भी शहीद हो गया, शुएब नदीम भी शहीद हो गया, अब्दुल गफूर नदीम भी शहीद हो गया, इलियास जुबैर भी शहीद हो गया। मैं नाम लेते चले जाऊं, नाम खत्म नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले इसी सहाबा की इज्जत पे हमारे 4 दोस्त कराची में शहीद हो गए। वक्त के साथ साथ सहाबा की इज्जत और तहफ्फुज़ के लिए ये खड़े रहे। एजाज के तौर पे आपको ये बात सुनाना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल और करम से हमने सब जुल्म सितम, जबर और तशद्दुद, बर्बरियत को सामने रखते हुए भी अपना रास्ता बदला नहीं, मिशन छोड़ा नहीं, नजरिए पर कंप्रोमाइज नहीं किया। दुनिया को बता दिया सहाबा की अजमत पे 1 लाख इंसान नहीं, करोड़ों लोग भी देने पड़े, जानों की कुर्बानियां दे देंगे, मगर सहाबा की अजमत से पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। मुझे अंजुमन शान सहाबा से, अंजुमन सिपाही साहबा की खुशबू आई। मुझे उस खुशबू ने इस हकीकत को आश्कारा करने पर मजबूर किया। मैंने आपके सामने कलिमात कहे। मैं उन्वान की तरफ आता हूं। उन्वान है शान सहाबा। शान सहाबा किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम किसी और से पूछें शान सहाबा क्या है, हम तारीख दान से पूछें शान सहाबा क्या है, हम सियासतदान से पूछें शान सहाबा क्या है, हम किसी तर्जुमान से पूछें शान सहाबा क्या है, हम किसी फकीह से पूछें शान सहाबा क्या है, हम किसी मुहद्दिस से पूछें शान सहाबा क्या है, हम किसी मुहक्किक से पूछें शान सहाबा क्या है। भाई शान सहाबा पूछने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। शान सहाबा देखनी है, अज़मत सहाबा देखनी है तो किसी और की किताब न देखो, अल्लाह की किताब देखो, अल्लाह का कुरान देखो, अल्लाह का कलाम देखो। सहाबा की शान कुरान में मौजूद है, सहाबा की शान तौरात में मौजूद है, सहाबा की शान इंजील में मौजूद है। कुरान ने कहा व मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। अभी सहाबा पैदा भी नहीं हुए कि उनकी शान तौरात ने बयान कर दी, उनकी शान ज़बूर ने बयान कर दी। मैं आज के उस बदबख्त को, उस लानती को जवाब देना चाहता हूँ। तू आज पैदा हुआ है और आज पैदा होकर मोहम्मद के यारों पे तनकीद कर रहा है, तबर्रा कर रहा है, गाली दे रहा है, एतराज कर रहा है। तुझे एतराज करने से पहले आसमानी किताबों का मुताला करना चाहिए था। आपके सामने ये बात आश्कारा करना चाहता हूँ कि इतने औसाफ तौरात में, तौरात के मानने वालों के नहीं है जितने औसाफ हुजूर के यारों के मौजूद हैं। इंजील के मानने वालों के औसाफ इंजील में इतने नहीं हैं जितने मोहम्मद करीम के यारों के औसाफ मौजूद हैं। और अगर आप कुरान करीम की तरफ आते हैं तो पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक कोई पारा ऐसा नहीं है, कोई सिपारा ऐसे नहीं है जिसमें सहाबा की तारीफ मौजूद न हो, सहाबा की शान मौजूद न हो, सहाबा की अजमत मौजूद न हो। क्या सहाबा की शान के लिए ये बात काफी नहीं है कि अल्लाह ने खुद अपने कलाम में सहाबा का तज़किरा किया, सहाबा की शान बयान की। और तवज्जो मेरी तरफ करो, चाटगाम के मुसलमानों तवज्जो करना, अल्लाह ने सिर्फ सहाबा के नाम का तज़किरा नहीं किया, काम का तज़किरा भी किया, पैगाम का तज़किरा भी किया, दावत का तज़किरा भी किया, तबलीग का तज़किरा भी किया, ईमान का तज़किरा भी किया, तकवे का तज़किरा भी किया, तहारत का तज़किरा भी किया, बुजुर्गी का तज़किरा भी किया। सहाबा निकले तो कुरान बन गया, सहाबा ने हाथ उठाया तो कुरान
बन गया, सहाबा ने जिहाद किया तो कुरान बन गया, सहाबा ने तिलावत की तो कुरान बन गया, सहाबा ने मोहब्बत की तो कुरान बन गया, सहाबा ने नमाज पढ़ी तो कुरान बन गया, सहाबा ने रोजा रखा तो कुरान बन गया, सहाबा ने जिहाद किया तो कुरान बन गया, सहाबा ने तलवार उठाई तो कुरान बन गया, सहाबा ने आज़ाम दी तो कुरान बन गया, सहाबा ने दावत दी तो कुरान बन गया, सहाबा शहीद हुए तो कुरान बन गया, सहाबा गाजी हुए तो कुरान बन गया, सहाबा ने दुआ की तो कुरान बन गया, माफी मांगी तो कुरान बन गया, इस्तिग़फ़ार किया तो कुरान बन गया, इल्तिजा की तो कुरान बन गया, आरज़ू की तो कुरान बन गया, मैदान में निकल कर फतह हासिल की तो कुरान बन गया, काफिर को मार भगाया तो कुरान बन गया। तवज्जो मेरी तरफ करो, सहाबा बदर में आए कुरान बन गया, सहाबा उहद में आए कुरान बन गया, सहाबा खैबर में आए कुरान बन गया, सहाबा तबूक में आए कुरान बन गया, सहाबा यरमूक में आए कुरान बन गया, सहाबा ने सब बांधी कुरान बन गया, सहाबा ने सब बंदी की कुरान बन गया, सहाबा मस्जिद नबी में आए कुरान बन गया, सहाबा ने हिजरत की कुरान बन गया, सहाबा ने मक्का फतह किया कुरान बन गया, सहाबा लश्कर बने कुरान बन गया, सहाबा सिपाही बने कुरान बन गया, सहाबा मुजाहिद बने कुरान बन गया। मैं तेरी तहकीक को तो सहाबा के बारे में तब मानूं जब मेरे पास तहकीक न हो और जब मेरे पाँव चट्टानों पर हो, रेत पर न हो, फिर मुझे रेत पर पाँव रखने की क्या जरूरत है। मैं सहारा किसी और से पी लेता हूँ, कुरान से लेता हूँ। दुनिया को बताना चाहता हूँ, दुनिया वालों समझो सहाबा का तज़किरा कुरान में है, यानी रब्बे रहमान ने किया है, कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान को मानते हैं, जिसका ईमान कुरान पर है वही सहाबा की असमत को जानता है। मैंने कहा किसी और किताब में सहाबा की शान पढ़ने की जरूरत, सहाबा की शान की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि आपका तज़किरा कुरान में है और खुदा ने खुद आपका तज़किरा किया है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम दुआ मांगी गई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। कौन सा सीधा रास्ता चाहता है? नमाजी कहता है, खड़े होने वाला कहता है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम दिया। हमें रास्ता चाहिए, सीधा रास्ता चाहिए, सिरात मुस्तकीम चाहिए, मंजिल चाहिए, कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए। सवाल पैदा होता है कौन सी कामयाबी, कौन सी कामयाबी का इनाम याफ्ता लोगों वाली कामयाबी। कुरान की तफसीर कुरान से पूछ लिए, इनाम याफ्ता तबका कौन सा है? कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, पहला तबका नबियों का तबका है, वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। पूछिए न जरा सिद्दीकीन कौन है, शुहदा कौन है, सालिहीन कौन है? तू नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह अकबर कहता है, तकबीर बांधता है, वजू करता है, वजू करने के बाद तू अल्लाह के सामने हाजिर होता है, सारी दुनिया से ताल्लुक को तोड़ता है, खुदा से ताल्लुक को जोड़ता है, ऐलान करता है, दुआ करता है, आरज़ू करता है, जुस्तजू करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, वो रास्ता मुझे चाहिए। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन, नबियों का रास्ता चाहिए, नबियों के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सिद्दीकीन का रास्ता चाहिए, सिद्दीकीन के इमाम अबू बकर सिद्दीक हैं। वश्शुहदा, शहीदों का रास्ता चाहिए, उमर शहीद है, उस्मान शहीद है, अली शहीद है, सहाबा शहीद है, शहीदों का रास्ता चाहिए। वस्सालिहीन, नेकोकारों का रास्ता चाहिए, नेकोकारों में हजरत हसन है, हजरत मुआविया है, तमामी सहाबाए किराम है, ये रास्ता चाहिए। मुझे लोग कहते हैं मौलाना साहब आप सहाबा सहाबा करते हो, हर उन्वान पे सहाबा की बात करते हो। मैंने उन्हें जवाब में कहा सिर्फ मैं सहाबा सहाबा नहीं करता, हर नमाजी सहाबा सहाबा करता है, हर मुजाहिद सहाबा सहाबा करता है, हर इंसान सहाबा सहाबा करता है, हर जी शऊर फर्द सहाबा सहाबा करता है। तू
تو نماز میں کھڑے ہو کر صحابہ کا تذکرہ کر کے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کہنے والا کہتا ہے یہ سیدھا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ آگے آئیے سورہ فاتحہ سے آگے آئیے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ سب سے پہلے متقین کون سے ہیں جنہوں نے قرآن کو لیا؟ تو جواب آتا صحابہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو کچھ آپ سے پہلے اترا، جو کچھ آپ پر اترا، ان پر ایمان لائے۔ پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایمان لانے والے پہلے